जो जेम्स कैमरून का स्पेशल विजुअल एडवाइज़र है, उसने हमारी फिल्म पे काम किया, उसने इसको सर्टिफिकेट दिया है, इसने अवतार पे काम किया। अब हम उससे बड़ा आदमी कोई जानते नहीं इस क्षेत्र में जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है। I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. These defenses. I think that's what it's all about. And all great art, music, great writing. It's only when Shaheen got completely vulnerable, she could write like this. And you don't have answers. And the ability to listen. I think the most important thing what Shaheen said was about her friend, Namita, that she would just call up and she would cry. And then after half an hour, she said, "Are you done with crying?" The very fact that somebody across the line listening to you as you cry. So you don't really want answers. You just don't, want there are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Or make it a religion. There are no answers. I warned you this is going to happen. Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't follow the things that you pretend to preach to them. They see it. I have never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. That's why they feel that they are not misfits with me. I am a misfit at 71. I can't expect a young little girl to fit into this sick world where brutality is legitimized. Papa. So nothing is wrong with you, darling. Nothing is wrong with you. The psychiatrist wants to fit you into this brutal world. He is more sick. Stop it. Get some help. ओके अब एक चीज दिखाते हैं. वी ऑल्सो हैड प्रूफ्स, टेस्टिमनीज कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है, बट मुंबई पुलिस डिडंट केयर टू सिंपली गिव अ शिट अबाउट इट. एंड आई विल शो यू वेयर एंड हाउ एंड व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट. नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को साउंड आएगी तो जस्ट लेट मी नो. लेट मी जस्ट शेयर दिस. इसका चेहरा तो देखना नहीं. साउंड आ रही है तो पीपल बता देना प्लीज. Can you hear me? Just take a thumbs up. Ladies and gentlemen, welcome. Lies can be scripted. Can you guys hear? Just confirm that once. Lies can be circulated. Lies can permeate across a nexus. And lies, ladies and gentlemen, lies
Lies can even with the help of corrupt officials be documented. But lies, and I say this to all, lies can using the truth. We have shown, and with documents and confrontations, that the Mumbai police cover-up is unethical, ghastly, immensely great, just about to be filed in our on the 7th. So what is the appropriate thing for Uddhav Thackeray to do? The appropriate thing for the Maharashtra Chief Minister to do now is to pull up and not defend the Mumbai police anymore. To question and not safeguard the Mumbai police anymore, because if he does, it is suspect. The Mumbai police must be asked now 10 questions. Why didn't you act when Sushant's family warned you? 2, why are you asking the public to give you leads on Disha's murder when till now you told the whole world it was a suicide? Okay, do you guys remember this? दिशा सालियान के केस में मुंबई पुलिस ने पब्लिक से एक अपील करी थी कि किसी के पास भी कुछ भी है तो आके वो मुंबई पुलिस से बात करे, despite of the fact that they had closed it as suicide already. Because at that point in time, they were getting pressurized from Supreme Court and also the fact that CBI was into this. So it is a very valid question raised by, one of the SSR warriors, Arnab Goswami. Let's hear him further. When you tried to wrap it up, Mumbai police. 3, why did you issue a communication that Sushant had committed suicide? How could you, when there was no proof, leave alone a suicide note? How could you, Mumbai police? 4, why did you never question the contradictions in the statements of Siddharth Pitani and Sandeep Singh when the whole world saw them clearly? Why did you block the Bihar police when they landed up to investigate and lock them up? Why didn't you dig out which politician, Mumbai police, and which Bollywood stars were at the party with Disha on the 8th when she called Sushant? Why didn't you investigate any of this? 7, when even when the truth started coming out like a tsunami, why did you try to push a depression theory? Why did your commissioner hold a press conference to insist it was depression? Why? On the basis of his Google searches. I mean, God knows what investigative skills the Mumbai police commissioner reflected when he said through Google searches I can find out that he committed suicide or insisted on hinting in such a direction. And why did you try and pull out old testimonies of the family which were taken when they were grieving? Mention them in the press conference and try to use the testimonies of the family members against them? And 8, why didn't you cross-question Ria? Why didn't you take her into custody? Why didn't you look even once on your own into the financial angle? And how many people will you mislead and how many people can you threaten? Why did you try to mislead everyone on a non-cognizable nepotism issue? Mumbai police, you think the people of this country don't see through you? You try to mislead everyone by calling the Bollywood biggies after Kangana's interview because you thought it was a perfect opportunity to try and pull out the argument of nepotism when you know Mumbai police, the nepotism is not a non-cognizable charge. I want to know which cognizable charge. Okay. All the 10 questions asked, हम इन 10 questions के बारे में already बात कर चुके हैं. Arnab Goswami asked these 10 questions in a month's time, in a couple of months' time, he gets picked up. Because he knew a little too much, maybe. Okay. Moving further. He just not only got picked up, but line se attacks hote hain. Okay. I'll tell you what I'm talking about. Ek second. जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कर रहे हैं गोस्वामी सर, हमारे एसएसआर वॉरियर, एक्स एसएसआर वॉरियर, अभी तो कुछ बात कर नहीं रहे तो मैं एक्स ही बोलता हूँ, एक्स एसएसआर वॉरियर जो अभी बोल रहे वो अभी दिखाता हूँ
कि किस वीडियो पे बोल रहे हैं। या वेट So where's your tie from? सुशांत सिंह राजपूत on 14th June बांद्रा पुलिस स्टेशन उनको ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कुछ दुर्घटना हुई है। Thereafter our police officer rushed there and they found श्री राजपूत बॉडी एक बेड पे रखी गई थी, जो भी घटनाक्रम था, और कुछ लोग जो वहाँ थे उनकी मदद से बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हमारे लोग लेके गए थे ना हॉस्पिटल, हमारे लोग लेके गए थे बॉडी को हॉस्पिटल, हमारे लोग। ओके, एक मैं ना बहुत क्रिमिनल साइकोलॉजी समझाता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट मच ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट दो, बट people who understand psychology would be able to understand. The way he spoke in the first 30 seconds, he fumbled 4 to 5 times. Okay, that was the count of fumbling that he had. Second, he is kind of putting in a reassurance, asking his own team member in one of the press conference, जहाँ पे एक कमिश्नर को सारी चीजें पहले से पता है, वो वहां पे कंफर्म कर रहा है और कह रहा है हमारे लोग लेके गए थे ना, हाँ हमारे ही लोग लेके गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया हॉस्पिटल में। अच्छा, एक और झूठ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही झूठ ओपन कि डेड डिक्लेयर हॉस्पिटल में किया गया। 15 मिनट के बाद तो तुम्हारा अभिषेक त्रिमुखे, जिसको इतने टाइम से कोविड हो रखा है, वो बाहर खड़े होके कह रहा है कि ही इज नो मोर एंड इट्स अ केस ऑफ सुसाइड, ओपन एंड शट। तुमने डेड डिक्लेयर तो घर पे ही कर दिया था। चलो आगे बढ़े। जितने लोग थे उनके बयान नोट किए गए। उनकी एक सिस्टर भी तब तक वहां पर पहुंच चुकी थी। घर के जो लोग थे उनके बयान नोट किए गए। जो ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को जो बुलाया गया था उसका बाद में बयान नोट। एक और ध्यान से सुनना, चाबी बनाने वाला नहीं, ताला तोड़ने वाला। चाबी बनाने वाला नहीं, ताला तोड़ने वाला, क्योंकि ताला टूटा था उस दिन। चलो आगे। नोट किया गया और जो एविडेंस थी वहां पे पंचनामा किया गया। एंड पंचनामा करने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया। एंड 15 जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम करीना से एंड डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से वो जब वहां पर आई तो फ्लैट को अनसील किया गया, पूरा एविडेंस कलेक्ट किया गया। एक्सपर्ट्स अनसील किया गया, एविडेंस 15 को कलेक्ट किया गया। भाई सील कब हुआ था चचा? और 14 तारीख को तो तुम एविडेंस ऐसे पॉलिथीन में लेके गए हो, फोटो है उसकी। 15 को कौन सा एविडेंस कलेक्ट किया वहां से तुमने? चलो, घर पे तो अंदर मजमा लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद ही पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फ्लैट को अनसील करके हैंड ओवर कर दिया गया था। जो अब तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 56 लोगों की अब तक स्टेटमेंट्स ली गई हैं, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, उनका जो गैजेट्स थे, उनका लैपटॉप या फोन्स, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। और एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने आज तक किया है। चप्पल पहन के पुलिस कर रही है एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर जोन 9 मिस्टर अभिषेक त्रिमुखे ने सुपरवाइज किया है। जिसके बाद उनको कोविड हो गया है और वो गायब हो चुके हैं। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। जितने भी इसमें पॉइंट आते गए वेरियस स्टेजेस पे, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का पॉइंट था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का पॉइंट था। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऐसे बंदे को जिसके अकाउंट में 17 करोड़ रुपए पड़े। चलो आगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का पॉइंट था। Health related issues to a person who was like preparing for Ironman competition. Milind Soman is a winner.
बहुत कम लोग बनते हैं आयरन मैन, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट इसके अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज. ओके, लेट्स प्रोसीड. सब पॉइंट्स को हमने डिटेल में एग्जामिन किया है और किसी को भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में स्पेयर नहीं किया है, चाहे कितना ही. हाँ, हमने भट्ट को बुलाया है, चाय पिला के भेजी है. करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है, चाय पिला के भेजी है. और जितने जितने भी लोग हैं, रिया को हमने स्पेशली वाइट वाइन दी थी क्योंकि उन्हें वाइन बस ज्यादा पसंद है. बाकी सबको चाय वाय पिला के भेज दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. बड़ा व्यक्ति हो, सबको बुलाया गया, इंट्रोगेशन किया गया है, एंड अभी भी हमारा इंट्रोगेशन चल रहा है. जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइडल डेथ या अननेचुरल डेथ होती है, उसमें प्रोसीजर के हिसाब से सीआरपीसी 174 के हिसाब से एक एडीआर दाखिल किया जाता है. एक एडीआर जो नंबर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का 43/20, उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है. बहुत ही ज्यादा, इतना प्रोफेशनल कि मैं बता भी नहीं सकता कि हम इतने ज्यादा प्रोफेशनल है कि फाइल एक बार काम कर लिया तो हम स्पेस बचाने के लिए फाइल को डिलीट कर देते हैं. वी आर सो प्रोफेशनल, क्योंकि डेलरॉन कंप्यूटर पे बैठे होंगे. हाँ, ये सही है, पी जैन जी, ये सही बोला. ये तो खुद बाइपोलर है. आई एग्री. ओके, आई एग्री. चलो लेट्स प्रोसीड. सवाल ये उठ रहे हैं कि परिवार ने बिहार में एक एफआईआर रजिस्टर किया है और यहाँ पे आप जो हमने पुलिस आपका बात की है, वो कह रहे हैं कि 2 इल्जाम उन्होंने बिहार में लगाए हैं, वो उन्होंने मुंबई में नहीं लगाए हैं. क्या परिस्थिति है? सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्री सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों के भी 16 तारीख को बयान नोट किए गए थे. उनके पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह, उनकी 3 बहनों के बयान और उनके ब्रदर इन लॉ के बयान नोट किए गए थे. ब्रदर इन लॉ का नाम है श्री सिद्धार्थ तंवर, श्री सिद्धार्थ तंवर. उनकी सिस्टर है नीतू सिंह एंड प्रियंका. इनके बयान नोट किए गए थे. उन्होंने बयान में किसी के ऊपर शक व्यक्त नहीं किया था, सस्पिशन किसी के ऊपर नहीं दिखाया था. और 1-2 बयान में ऐसा भी आया था कि प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से और जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जिस इलनेस के लिए, उसके कारण से हो सकता है उन्होंने सुसाइड की हो. लेकिन ऐसा क्लियरली सभी ने स्टेटमेंट में कहा था कि किसी के ऊपर उनको शक नहीं है. जो सबसे पहली स्टेटमेंट जो बिहार में कंप्लेंट की गई है वो श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने दर्ज की है. लेकिन उनका जो पहला स्टेटमेंट था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने टाइम में दी थी, वो मुंबई पुलिस को 16 तारीख को दी थी. और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही सैंक्टिटी लॉ अटैच करता है, क्योंकि आपको उसको बारे में सोचने का मौका नहीं मिला. इट इज अनकरप्टेड वर्जन. सुन रहे हो ना, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है बहुत ही सैंक्टिटी, अच्छा वर्ड सीख क्या है लड़का, सैंक्टिटी लॉ होता है और उसे प्रायोरिटी दी जाती है. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो मिस्टर कृष्ण कुमार सिंह ने, मिस्टर के सिंह ने 25 फरवरी को आपके डीसीपी को दे दी थी. अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल लॉ द थिंग इज कि एक चीज है कि अगर आप व्हाट्सएप से भी या मैसेज करके भी किसी टेक्स्ट फॉर्म में भी पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक कंप्लेन बता रहे हो, तो दैट इज priority for that policeman to work upon and treat it equally as a first information report and then formally file an FIR onto that. उस पे क्या किया? सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी वाला प्रोसेस फॉलो किए हैं, समझ रहे हो? आगे चलते हैं. The first version of the person, तो वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है. उसके बाद हमने परिवार के सदस्यों को दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, लेकिन उसके बाद नहीं आए. उनकी बहनों को आगे फर्दर कोलैबोरेशन के लिए बुलाने की कोशिश की. उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर बाद में आकर हमारे जॉइंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से भी मिले. तभी उन्होंने कोई शिकायत व्यक्त नहीं की. वो प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते थे जहाँ उनका सामान था, उसको चेक करने के लिए, बाकी कार्य के लिए. और ये जितनी स्टेटमेंट्स हुई. अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि फैमिली को घर पे जाने के लिए इनके पास आके परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन सिद्धार्थ पैठानी वहां पे, मतलब मूर्ख इंसान नामुराद, वो उस घर पे 1 महीने तक रहा है, उसको परमिशन ऐसे ही मिल गई थी, वो तो वहीं का था ना. चलो आगे बढ़े. परिवार के सदस्यों की उस समय उनके जो दूसरे ब्रदर इन लॉ जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं श्री ओपी सिंह, वो सब मौजूद थे. उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी. और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की, वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं.
हमारे एसीपी भी मौजूद थे, आईओ ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। विद इन ये पुलिस का रूल होता है आई गेस। इफ जो भी यहाँ पे अगर कोई लॉयर या फिर इफ समवन अंडरस्टैंड्स लॉ कैन टेल मी, आई गेस 7 days के अंदर पुलिस को उनकी इंक्विजिशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ना, इंक्वेस्ट वाली जो वो इंक्वेस्ट करते हैं, इट हैज टू बी डन इन 7 days। बट इन्होंने तो इंक्वेस्ट भी किया है 55 दिन तक। बहुत सैंक्टिटी के साथ काम करते हैं इन लोग, चप्पल पहन के एकदम बिना किसी टेंशन के। चलो आगे बढ़े। फरवरी 25 को उन्होंने एक कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दी थी कि दे आर एप्रीहेंसिव फॉर व्हाट इज हैपनिंग विद सुशांत सिंह राजपूत। इस कंप्लेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है कौन सी कंप्लेंट है, राइटिंग में कहा है हमें। व्हाट्सएप पे इतना घूमा है ना, ये इन्हें नहीं मालूम है, इन्हें देखना नहीं आता। कॉपी वगैरह देंगे तो अवश्य हम उस एंगल से भी। और इस पार्टी की बात हो रही है और किसी मंत्री वगैरह जो भी ऐसा सब कुछ अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया। हमने 13 और 14 जून का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के। अब एक बात बताओ, ऐसी थ्योरी क्यों है? व्हाई इज द थ्योरी रिवॉल्विंग कि सीसीटीवी फुटेज है नहीं, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहा है कि हमने एग्जामिन किया है? तो व्हाई आर पीपल सेइंग कि सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं? चलो, जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे, उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। 13 तारीख को या 14 तारीख का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ पार्टी इस प्रकार की हुई थी। कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहां भी एक कॉग्निजेबल गुनाह रिपोर्ट किया जाता है, वहां की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है, दूसरी जुरिसडिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी जुरिसडिक्शन के बाहर का गुनाह इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, हमको कागज पत्र चाहिए थे, हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने जुरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं, हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारे। तो फिर साहिल चौधरी को क्यों उठाया था दिल्ली आके? अगर इनका सैंक्टिटी के हिसाब से इनका ये चलता है चप्पल चोरों का कि इन लोग दूसरे स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं, कोई अगर FIR आती है तो वो FIR फिर ये उसको साहिल चौधरी को उठाने क्यों गए थे? वो केस ट्रांसफर क्यों नहीं किया तुमने फरीदाबाद में? क्योंकि साहिल चौधरी फरीदाबाद में था। चलो आगे बढ़े। हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता, तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन लेंगे कि दूसरी जुरिसडिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है कि नहीं। Harsh, I didn't get your point, bro. Can you elaborate? क्वारंटाइन का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। वो BMC के अधिकारी, BMC का मैकेनिज्म है, उसके बारे में उनके रूल है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। दिशा पालियान के डेथ को सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ जोड़ा जा रहा है, कुछ उसमें आपको कोई तथ्य मिले हैं? दिशा सालिम की डेथ हुई थी 8 और 9 जून की रात को। रीजन गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग है मालवनी एरिया में, जहां वो अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे थी और उनके साथ 4 लोग और मौजूद थे 8 की रात को, जहाँ पे वो उनका छोटा घर में पार्टी या कुछ फंक्शन चल रहा था। उसमें दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्या, हिमांशु शिखरे एंड रेशा पडवल और इसके अलावा उनके फियांसी रोहन रॉय
एंड दिशा सालिन मौजूद थी। और रात में जब उन्होंने एक बार दरवाजा बंद कर लिया, बाद में ऐसा नोटिस किया गया कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरे, उनको पाया गया, उनको शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके परिवार के, उनके माता पिता के बयान लिए गए, बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया गया। और जब एक न्यूज नेशन नाम का चैनल जाने लगा हिमांशु शिखरे के पास, तो 5 मिनट के अंदर चप्पल चोर की गैंग पहुंच गई वहां पे हिमांशु शिखरे के पास। न्यूज नेशन का कैमरा तक पहुंचने नहीं दिया, अपनी चप्पलें डाली होंगी वर्दी के नीचे और सीधा गए होंगे। चलो लेट्स प्रोसीड। और उसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इन 6 व्यक्ति के अलावा वहां कोई और नहीं था, कोई वहां पे पॉलिटिकल लीडर हाजिर नहीं था, इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है। सिर्फ बाबा सिद्दीकी की एम्बुलेंस थी और कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था वहां। सिर्फ संजय निरुपम गया था मॉर्चरी वाले उसमें, और कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल लीडर के बॉडीगार्ड को सुबह 4:30 बजे तक मलवानी पुलिस स्टेशन में रोक के रखा था और कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। चलो आगे बढ़े। और उनके परिवार के सदस्यों ने, माता पिता ने और फ्रेंड्स जो उनके साथ हम पार्टी में मौजूद थे, सबने स्टेटमेंट दिया है कि इसमें कोई सस्पेशन नहीं है। सर, उन्होंने कोई गूगल सर्च किए थे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी डेथ से पहले, क्या चीजें थी? जितना अभी तक हमने एग्जामिन किया है उनका गूगल हिस्ट्री, उसमें वो एग्जामिन करते थे, पेनलेस डेथ एग्जामिन करते थे। ऐसा कुछ निकला ही नहीं है। सीबीआई ने सीधा बोल दिया है कि ऐसा कुछ उसकी सर्च हिस्ट्री थी ही नहीं। पेनलेस डेथ, माय फुट। बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जामिन करते थे। बाइपोलर डिसऑर्डर, हाँ, परमवीर सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, इसकी कौन सी दवाई इसको मैं सजेस्ट करूं, ये करते होंगे। अपने नाम को बार बार सर्च करते थे। हाँ, तेरे से बेटर है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि जब उनका नाम दिशा सालिन की सुसाइड के साथ लिंक किया गया, तो जब उनका दिशा सालिन की सुसाइड के साथ उनका नाम लिंक किया गया, उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। इस प्रकार का बयान में आया है। कहां से, किसने दिया है ये बयान? क्योंकि पिठानी ने तो सीबीआई को काफी बाद में बोली है ये बात। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस अपनी वो कर रही थी, इंक्वेस्ट कर रही थी, उस हिसाब से ये बयान मुंबई पुलिस के पास आया कहां से? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। चलो। और लेकिन हमारी जानकारी जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है वो ये है कि जो दिशा सालिन है, ये काम करती थी कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए। उनकी मुलाकात सिर्फ मार्च के महीने में एक बार श्री सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी, लेकिन फालतू आरोप उनके बाद। गाइज, एक और चीज बताता हूँ, मेरे को बस एक चीज चेक करने दो। 10 मिनट के लिए सुशांत से दिशा मिली है, विच आई कैन अग्री अपॉन, बट मेरे एक मूवी थी, इफ यू रिमेम्बर, एक मूवी थी। चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ, पहले लेट्स कम बैक टू दिस। ये क्या कहना चाह रहे हैं? बारे में नेट सोशल मीडिया में कुछ फालतू र्यूमर्स स्प्रेड किए गए, उनको लिंक किया गया सुसाइड से। इससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इनफैक्ट वो अपने वकील को, हमें एक ऐसा मैसेज मिला है कि अपने वकील से पूछते हैं हु इज दिशा सालिन। Oh, Sushant Singh is chatting with Disha about his projects, and Sushant Singh is saying, "Who is Disha Salian?" वाह वाह वाह। तो उनका दिशा सालिन से सुसाइड से कोई लिंक नहीं था, लेकिन एक सोशल मीडिया में इस प्रकार का कुछ जहर फैलाया गया था, जिसके कारण वो डिस्टर्ब अवश्य हो गए थे। अब एक बात बताता हूँ छोटी सी। इसने बोला मार्च के महीने में दिशा मिली थी सुशांत से, तो दिशा तो आई गेस मई जून के आसपास ही बिकेम अ रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि श्रुति मोदी का पैर टूटा था। उसका पैर मार्च से तो नहीं टूटा था, क्योंकि इफ वी ऑल रिमेम्बर, जब ये केस हुआ था उस टाइम पे भी श्रुति मोदी के पैर में प्लास्टर था। सो a point to actually go ahead and think on. चलो लेट्स प्रोसीड। सो डॉक्टर से भी हम टच में हैं। हमने जो 5 डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे थे, उनसे हम टच में हैं, जिनमें से एक आई सर्जन था और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक थाने का डेंटिस्ट था, से भी हम टच में हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनके लेजर्स भी एग्जामिन किए हैं।
और उसके हिसाब से हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन और 15 करोड़ एकदम गायब कर दिया, किसी को पता नहीं चलेगा टाइप्स। चल रहा है। और एक जो फैक्ट बार बार सामने आ रहा है कि अकाउंट में मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में, उसमें भी स्पष्ट करना चाहूंगा, जितना अभी तक हमने प्राइमा फेसी जानकारी सीए से मिली है, हमने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं उसके हिसाब से उनके अकाउंट में लगभग 18 करोड़ रुपया था। उसमें से लगभग 4.5 करोड़ रुपया अभी जो उनके अकाउंट में एफडीज में है। जो खर्चा हुआ 13-14 करोड़ का, उसमें से एक भी पैसा, हमारी जितनी जानकारी दिखाई देती है उसमें से अभी तक कोई पैसा नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में गया था। तो किधर गया था चचा, ये तो बता दो, किधर गया था सैंक्टिटी के साथ अपनी? लेकिन डिटेल पूरी हम जानकारी निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से हम पूरा उनके अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। ऐसी जानकारी निकालिए कि 100 करोड़ के केस में अंदर खुद बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तो थे जी हमारे परमवीर सिंह चचा। ठीक है, थोड़ा लंबा इंटरव्यू था, है ना। अब एक छोटा इंटरव्यू और दिखाता हूँ, 2 लोगों का दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है। जो हम एक नया एंगल बोल रहे थे ना, वो चालू हो चुका है। तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम शोइंग दिस। पहले हमने परमवीर सिंह का इंटरव्यू देखा, ठीक है। अब हम अगला इंटरव्यू देखते हैं इनका। Struggling with erection and timing issues. एक सेकंड पीपल, Here is a proven solution from medical experts. सुशांत सिंह मामले में आज हमारे यहाँ आए हैं कोविड मैन, हमारे अगले इसके। इन्हें पिछले 1.5 साल से कोविड हो रखा है, उसके बाद ये गायब हो गए प्रमोशन लेके कहीं से। ये हमारे दूसरे कलाकार, आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। इसको इसके चाचा ने बताया, परमवीर चाचा ने आके, कि सुशांत ने सुसाइड किया है। तभी ये परेशान हो गया कि क्यों सुसाइड किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 25 फरवरी को इनके पिताजी का मुझे मैसेज आ गया। नहीं, वो परमजीत सिंह दहिया को आया था, बट ठीक है, चलो आगे बढ़ो। So this guy, Abhishek Trimukhe, comes out of the blue. So they have recorded statements of 27 people so far. That was said. Okay, now he comes in. सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक बांद्रा पुलिस ने 27 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। सुशांत सिंह राजपूत का डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सुपर हॉस्पिटल से मिला है, जिसमें कि 5 डॉक्टर्स की टीम ने पीएम रिपोर्ट पे साइन करके पुलिस को दिया गया है। सुशांत सिंह का कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर्स ने क्लियरली एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग ये पुलिस को बताया है ऑन रिकॉर्ड। बाकी जो सैंपल्स उनके कलेक्ट किए गए थे वो सीए को एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। प्रायोरिटी तो उसका एनालिसिस हो, इसके लिए। और इनकी सैंक्टिटी के साथ प्रोफेशनल एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन करने वाली स्कॉटलैंड यार्ड चप्पल चोर गैंग, उन्होंने इतना अच्छा एनालिसिस किया कि इन्हें मालूम पड़ा कि वो जो ग्रीन क्लॉथ था उसमें सुशांत की सिर्फ 3 फिंगर्स के प्रिंट थे। 3 फिंगर्स ने ही हंग हिमसेल्फ। ओके, और पिठानी वो स्टेइंग देयर आराम से। उसके बाद इन्होंने दे इंश्योर्ड कि चचा ने बोला कि कोई दिक्कत ना हो पिठानी के वहाँ रहने में, घर को थोड़ा पेंट वेंट करा दो, नया बेड वेड लगवा दो ताकि पिठानी को कंफर्ट मिले वहाँ पे रहने के लिए। चलो आगे बढ़े। हमने हमारी फॉरेंसिक टीम को रिक्वेस्ट की है। सुशांत सिंह मामले में क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, और जैसे ही जांच में कुछ सामने आएगा तो पुलिस आप सबको जरूर बताएगी। मैं जो कभी नहीं हुआ। माध्यम से सब लोगों को अपील करता हूँ कि बहुत सारा सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की खबरें इस केस के बारे में दी जा रही है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मुंबई पुलिस इस केस को, इस सेंसिटिव केस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है। और देखो, प्रोफेशनल यहाँ भी है सैंक्टिटी के साथ, दे आर वेरी प्रोफेशनल।
They have the same kind of tone to speak to media. Professional. Sanctity. Okay? आगे बढ़ते हैं. आप पुलिस में विश्वास रखें, जो सच है वो सबके सामने पुलिस लाएगी. पुलिस पे विश्वास रखें और अपने देश को बर्बाद रखें. ऐसा कुछ होना चाहिए स्कॉटलैंड यार्ड के लिए. ठीक है. वेरी प्रोफेशनल पीपल. लेट्स गो अहेड. सो दिस वाज द सेकंड बंदा, अभिषेक त्रिमुखे. Judy, I can understand you feeling the frustration, but let's not wish for someone's, someone, not a good thing. नहीं. हाँ, मतलब इनको they will pay for what they have done. They have to pay for what they have done. Okay, so this three-faced man, first of all, he's at the spot जहाँ पे ये सीन हुआ, जहाँ पे ये क्राइम हुआ. 15 मिनट के अंदर इसने बोला कि ओपन एंड शट केस है जी, कुछ नहीं होना इसमें. सब हो गया, ठीक है. बाद में जब बिहार पुलिस आई तो त्रिमुखे सर तो गायब, मतलब लिटरली गायब, कहीं पता नहीं कहाँ है. फिर अचानक से एक उड़ती फिरती न्यूज आती है कि इनको तो हो गया कोविड, ये गए कोविड की चपेट में. पिछले 1.5 साल से बंदा कोविड से रिकवर नहीं कर पाया है. मैं कहता हूँ त्रिमुखे को, ये जो फाइजर वाइजर ये सब क्या वैक्सीन बनाना है, त्रिमुखे को लेके जाओ यार, इस पे एक्सपेरिमेंट करके अपनी मतलब वो चलाओ वैक्सीनेशन. 1.5 साल से कोविड ठीक नहीं हुआ है बंदे का, और इससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं है. तो क्या कर रहे हो फाइजर, क्या कर रहे हो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई मतलब नहीं है. स्पुतनिक भी फेल, मतलब रशिया, पुतिन, व्हाट आर यू डूइंग पुतिन? नॉट एक्सपेक्टेड दिस आउट ऑफ यू, बट दिस इज नॉट हाउ इट्स डन इन रूसिया, बट अगेन दे हैव टू. ठीक है, तो हमारा दूसरा बंदा आ जाता है कोविड मैन. अब चलते हैं हम अपने तीसरे कैरेक्टर के ऊपर. ध्यान देना, तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है, द नॉटी बॉय. ही इज अ नॉटी बॉय. चलो आगे बढ़े, हम देखें व्हाट डज नॉटी बॉय हैज टू से. पहले आया परमवीर, फिर आया अभिषेक त्रिमुखे, फिर आया द इनफेमस नॉटी बॉय. चलो इनकी सुनते हैं. मुंबई पुलिस केपेबल ऑफ कंडक्टिंग. बताना चाहता हूँ, ये जो मामला है वो मामला मुंबई के पुलिस सक्षम है. अगर मुंबई के पुलिस जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए. पूरे विश्व की पुलिस मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा रखती है. अमृता फडणवीस म्हणतात मैं ओ भाई मारो मुझे मारो पूरे उसमें बोलना चाहता हूँ, मतलब पूरे फील के साथ बोलना चाहता हूँ उतनी जोर से, लेकिन मेरे घर वाले सो रहे हैं, वो उठ जाएंगे, इसलिए मैं वो ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा. बट पूरे विश्व के पुलिस को विश्व के मुंबई पुलिस पे भरोसा है. चलो आगे बढ़े. तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पुलिस की जांच चल रही है तो जो व्यक्ति सरकार में नहीं है और सरकार से संबंधित नहीं, मेरी जैसी व्यक्ति, उसने उसके ऊपर टिप्पणी करना जांच के बारे में, ये ठीक नहीं. ओके, तो तीसरा बंदा है हमारा नॉटी बॉय. नॉटी बॉय ने भी जगह जगह आके पंगे लिए हैं, चाहे वो कंगना रनआउट के साथ लिए हैं, जो खुद एक यू टर्नर थी. ओके, नॉटी बॉय वाज ट्राइंग टू सपोर्ट मुंबई पुलिस
क्योंकि ऊपर से था ना जी, प्रेशर था, आप समझोगे नहीं, प्रेशर था। ठीक है, तो नोटी बाई से भी रहा नहीं गया, वो हर एक छोटी छोटी चीज में आगे आके नाक डालना उसने शुरू कर दी। नहीं, मुंबई पुलिस वेरी प्रोफेशनल, सैंक्टिटी के साथ उन्होंने सारी चीजें करी है, विद सैंक्टिटी, चप्पलें अपनी कंधों पे रख के। कुछ और बोलने वाला था, बच ओके। ठीक है, तो वो सैंक्टिटी शुड बी मेंटेन्ड एंड नॉटी बॉय वेंट came in front and stood for the sanctity, supporting the professionalism that Mumbai police has shown, and सारे विश्व की पुलिस को विश्वास है मुंबई पुलिस पे। चलो ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, तुमको एक कॉमन एंगल दिखा इन तीनों में या फिर इस पूरे केस में? I'll ask you this once. परमवीर सिंह, अभिषेक त्रिमुखे, संजय राउत, थाने, ये सब किस एरिया से बिलोंग करते हैं? थाने, राइट? थाने 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 याद आ रहा है? थाने, सचिन वाजे, थाने। मेरा आज का डिस्कस करने वाला एंगल है, व्हाट इज दिस थाने एंगल? ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग थाने से कैसे हैं? कि मुंबई इतनी बड़ी होने के बावजूद, दिशा टालेकर, you have got a very wrong information. I'm not talking about Shroffs. They are nowhere near this. Let me take you to something else. Let me take you to something else. सारे के सारे थाने के, मुंबई इतनी बड़ी होने के बावजूद बैंड्रा का केस क्यों कोई अंधेरी का बंदा या मलाड में बेस्ड बंदा या विरार में बेस्ड बंदा या फिर गोरेगांव में बेस्ड बंदा या फिर कोई साउथ बॉम्बे में बेस्ड बंदा, बाइकुला में बेस्ड बंदा, इन लोग क्यों नहीं कर रहे? वाई ओनली पीपल फ्रॉम थाने आर इन्वॉल्व्ड अराउंड दिस केस? थाने में ऐसा क्या है? सोचने वाली बात है ना? आरती सेज आई एम ऑल्सो फ्रॉम थाने, कूडोस। थाने में सब कुछ है, थाने में सब कुछ है, क्योंकि सारी चीजें अगर आप देखोगे थाने से कनेक्टेड हैं समहाउ और दी अदर। चाहे वो सचिन वाजे का मनसुख हिरेन वाला प्रॉपर केस रहा हो, सचिन वाजे कहाँ से बिलोंग करता है वो रहा हो, परमवीर सिंह कहाँ से है वो रहा हो। आप लोगों को याद होगा एक वीडियो बहुत पहले मैंने फॉरवर्ड या ट्विटर पे चढ़ाई थी, जहाँ पे ये सारे थाने वाले जितने भी ये पुलिस वाले हैं, परमवीर सिंह स्क्वाट्स कर रहा था, अभिषेक त्रिमुखे ऐसे चेस्ट फ्लाइज मार रहा था, एंड इन लोग वर्कआउट कर रहे थे, पुलिस वाले, थाने वाले जितने थे सारे। सो दे कम फ्रॉम वन सेम गैंग। ठीक है, तो हम इनको नाम दे देते हैं टीम थाने। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूं जो आपको वापस लेके जाएगी थाने। चलते हैं। और ये नाम मैं जानता हूं, मैंने मुंबई पुलिस को सिर्फ इसलिए उठाया है ताकि मैं इस नाम तक आ पाऊं। मुंबई पुलिस के आगे और भी, परसों से तो रजत आ जाएगा, तो हम लोग फिर एक्सटेंसिव एक एक का एपिसोड बनाएंगे। बट अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपल, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, और मैं फैक्ट सामने रख के बात करूंगा। थाने से थाने तक का सफर, जिसने भी लिखा बहुत सही लिखा, वाह वाह, खूब लिखा, मजा आया। चलो अब हम देखें कि थाने से एक और बंदा इस केस को गलत बताने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को सपोर्ट करते हुए, उस सैंक्टिटी के लिए अपनी आवाज उठाते हुए। आओ उस सैंक्टिटी के एक और शूरवीर इंसान को देखें। सब जानते हैं इस चेहरे को, जानते हैं?
चलो हम आगे बताएंगे हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी थाने से, ठीक है, ये भी थाने से है। चलो पहले सुनते हैं इनका क्या कहना है। मुंबई में सुशांत के हुई सुसाइड के घटना के बाद मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी, उस जांच में अभी तक सीबीआई का वो आया नहीं है डिसीजन या कंक्लूजन, बट इसको मालूम है मुंबई पुलिस में सुशांत के सुसाइड केस का, इसको मालूम है क्योंकि ये थाने से है। सर ये सुनील सर ये मिसिंग नहीं है, अभी बताते हैं आपको क्या चल रहा है, अभी आपको समझ आएगा, रुको। बहुत सारी घटनाएं सामने आने लगी है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सुशांत की बहन और सुशांत की फैमिली के कुछ मेंबर दिल्ली के किसी डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन बनाते थे जो फेक हुआ करता था, और उसके माध्यम से तो जो प्रिस्क्रिप्शन फेक हुआ करता था, उस फेक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बहन उनको गलत दवाई देती थी और उस दवाई के चक्कर में उन्हें बिना किसी चेकिंग के प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, और उस वजह से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सुसाइड का केस है, वो बाइपोलर था और उसकी बहनों के ऊपर जांच होनी चाहिए। ये एक नया एंगल है, और चलो हम इस बारे में और आगे बात करते हैं कि मैं थाने में क्या करता हूँ। जो बोगस दवाइयाँ थी और साथ ही में ड्रग थे, वो सुशांत को दिए जाते थे, और सुशांत को उस जरिए उन्होंने उस ड्रग की नशे में उसको लगा दिया था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओह, तो सुशांत की बहन ने उसको ड्रग के नशे में लगाया था उस डॉक्टर से वो वाली दवाई लेके। सुशांत की जो मुंबई में प्रॉपर्टी थी, सुशांत की जो पहुना में प्रॉपर्टी थी, या देश के अन्य जगह में जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए सुशांत के फैमिली ने उसको जानबूझकर ड्रग के या नशे के लाद में उसको लगा दिया ताकि वो सुसाइड करे। इस तरफ भी मुंबई पुलिस ने ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में भी इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये प्रताप सरनायक इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके चचा जान ने आके इसको सपने में बताया था कि ऐसा हुआ है, और ये नया एंगल है जिसको हमें जाके ध्यान देना चाहिए। मैं अपने बेटे विहांग से कल ही बात करूंगा कि कल वो जाए और परमवीर सिंह को बोले कि यू बीइंग फ्रॉम थाने, गेट योर टीम अलोंग टुगेदर एंड ट्राई टू फाइट दिस केस टूथ एंड नेल, क्योंकि शिवसेना का पैसा तो हम ही लोग संभालते हैं ना बेटा। चलो आगे बढ़े। ऐसी मांग मैं पुलिस कमिश्नर मुंबई के जो परमवीर सिंह है उनके पास कर रहा हूं, ताकि लोगों को भी पता चले कि सच क्या है, उसकी सुसाइड प्रॉपर्टी के लिए हुई या ड्रग के नशे में हुई। क्यों हुई है उसकी मौत, आप लोगों को पता है यार। गाइस एक चीज पता है तुम्हें, ये सारी चीजों की, ये सारे केसेस की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? कैन एनीवन इंडिकेट दैट वंस? कहां से हुई थी ये सब? महाराष्ट्र में अनरेस्ट और ये सब कहां से चालू हुआ था? जब से ये थाने के ऑफिसर्स एक साथ आए, 6 जून को थाने का एक ऑफिसर रीइंस्टेट होता है, सरनायक is from थाने, संजय राउत, परमवीर सिंह, प्रदीप शर्मा, दया नायक, ये सब थाने के हैं। सारी चीजें पालघर से चालू हुई थी। एग्जैक्टली आकांक्षा, एग्जैक्टली जूडी, एग्जैक्टली सुनील सर, पालघर, जहां लिंचिंग हुई थी। उसके बारे में हम थोड़ी बात परसों करेंगे जब रजत आ जाएंगे, थोड़ी डिटेल में, क्योंकि कुछ चीज हाथ आई है। We'll talk about it, but before that, आओ हम कुछ देखें कि हमने क्यों आज प्रताप सरनायक की बात करी है। लोग कहते हैं he's no more, he's hiding. I know he's underground. But the main question that raises here is, and if you also know, इसको ईडी के समन्स आ रहे थे जो ये मिस कर रहा था। एक न्यूज आई थी बीच में जो बहुत मुश्किल से विजल करके इधर उधर से निकल गई, ज्यादा लोगों की नजर में नहीं गई। लेट मी शेयर दैट विथ यू। और ध्यान से पढ़ना। ईडी CBI raids on Pratap Sarnaik's resort in Lonavala.
In fresh trouble for Shiv Sena spokesperson and MLA Pratap Sarnaik, the ED and CBI have reportedly conducted fresh raids at his resort. According to Maharashtra Times, there have been ED CBI raids at Pratap Sarnaik's Lonavala resort. The reason behind the fresh raids is unknown. Okay. However, BJP leader Kirit Somaiya asked if Pratap Sarnaik had gone missing because he was underground. सबसे पहली चीज why I am talking about प्रताप सरनायक is because यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज है. In fresh trouble for शिव सेना spokesperson, ईडी तो थी ही थी. ईडी के समन्स का हम सबको पता था. CBI has also reportedly conducted fresh raid. CBI क्या कर रही है महाराष्ट्र के अंदर अभी, किन किन केसेस पे काम कर रही है, और अचानक से वो प्रताप सरनायक के रिजॉर्ट पे क्यों रेड मार सकती है? इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है जिसपे आगे मैं अभी नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल्स में बताऊंगा. और इन द मीनवाइल आई वुड also share the StreamYard link for people who would want to join if they would want to. I know बहुत लंबी already stream हो गई है, तो we won't keep it ज़्यादा लंबा, but if you want to go ahead and put in your thing about this, क्योंकि ये last part है which I am covering and it is important for you to understand, so please also understand that side by side. ठीक है, this is the link and now let's go back to where we were. तो जब ईडी का चल रहा है तो why is CBI also conducting a raid? यहाँ पे आता है Pratap Sarnaik has bought 78 acres of land at Titwala from NSCL scam money. Claimed Kirit Somaiya, his partner Yogesh Deshmukh, was arrested by ED few weeks back. Sarnaik's other partner Mohit Agrawal has siphoned 216 crores of NSCL scam. तो ये एक particular scam का केस था जो ED से चल रहा था. But my question arises कि अगर ये ईडी एक पर्टिकुलर केस को ओवरसी कर रहा है तो why would CBI get into it? And just like they tried, you know, जिस तरीके से इन लोगों ने सिस्टमैटिकली आके संजय राउत और इन सब लोगों ने वो करने की कोशिश करी, you know, like इस केस सुशांत केस के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करी, the same way उन्होंने सरनायक को बचाने की भी कोशिश करी. एंड ये रहा उसका प्रूफ. हाँ, शिवसेना claims misuse of CBI ED questions, why no probe in Ayodhya land deal. तो एक तरीके से हमारे नोटी बॉय जाके कह रहे हैं कि ऐसा करना नहीं था ना, ऐसा क्यों किए तुम, ऐसे क्यों किए, मतलब तुम ऐसे क्यों हरास कर रहे हो हमारे एक यू नो द थाने गैंग के एक मेंबर का जो पूरे शिवसेना का पैसा चलाता है, उसका बेटा विहांग, उसको तुम ऐसे हरास कैसे कर सकते हो? ये तो एक बहुत बड़ा यू नो लाइक एक रचा हुआ साजिश है, एक प्रोफेशनल और सैंक्टिटी के साथ काम करने वाली गैंग का. बिकॉज ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो. It is, for me, currently, in the current scenario, it is the Thane gang. I'll call them the Thane gang. Okay. Now, this Nautanki boy had a lot to say about, you know, going ahead and talking shit about MLA Ram Kadam and also, you know, dragging a couple of more people and trying to turn the case away towards Ayodhya land deal and, you know, try to just save Pratap Sarnaik's इमेज कि ये उसके साथ हरासमेंट हो रहा है. बट हरासमेंट अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं हुआ था, वो भी एक थाने बॉय ने किया था. हरासमेंट नो मैटर, उसने कंगना रनौत ने अपना एक यूटर्न लिया है, बट हरासमेंट उस पर भी हुआ था, वो भी थाने के लोगों ने किया था. त्रिमुखे, परमवीर सिंह, हाँ, थाने एंगल कुछ तो है. पालघर से सब स्टार्ट हुआ था, कुछ तो है, राइट. अब आते हैं हम एक और जगह पे. संजय राउत का आर्टिकल हमने देख लिया, ठीक है. नेशन पॉलिटिकल वेंडेटा का इन्होंने नाम दिया था. अब आते हैं हम एक आर्टिकल पे.
वाजे भी थाने से, एब्सोल्युटली। तो थाने गैंग, यू नो, द थाने बॉयज, जिम भी साथ करे हैं, मजे भी साथ ले है, ऐसा करके कुछ है ना। ओके, आई डोंट वांट टू मेक एनी पेमेंट डूड। हाँ, महाराष्ट्र ED raids Sena MLA Pratap Sarnaik's premises, detains his son in money laundering case. His son Vihang Sarnaik. The Shiv Sena called the raids as political vendetta and said the Uddhav Thackeray government will not surrender to pressure from anyone. The Enforcement Directorate on Tuesday detained Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik's son Vihang Sarnaik from his residence in Maharashtra's Thane after conducting raids at the legislator's residence and offices in connection with alleged money laundering case, ANI reported. Pratap Sarnaik, who represents Sena from the Ovala Majiwada constituency in the State Assembly, is the chairman of Vihang Group of Companies that has invested in real estate development in Thane, according to the Hindustan Times. The investigation agency's officials told the newspaper that premises linked to Sarnaik's son Purvesh and Vihang have also been searched. Significantly, Pratap Sarnaik had moved a breach of privilege motion against Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami and also sought reopening of investigation into the suicide of interior designer Anvay Nayak, who left a note accusing Goswami and 2 others of not clearing his dues, according to the Indian Express. अगर हम आज तक ये सोचते आए ना कि it was UT or it was AU who went ahead and initiated the action against Arnab, here is the blatant proof for you all. Take a screenshot that it was Pratap Sarnaik and it was them who went ahead and initiated this particular case to be started and Arnab to be haunted in the first place. Okay. Meanwhile, Shiv Sena has accused that the raids were an attempt to pressurize the party and called it a political vendetta. जो नोटी बॉय ने बोला और भी कई लोगों ने बोला, ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी करके एक शिवसेना वो है, they simply said this methodology of misusing ED, IT, CBI has been used by central government to silence opponents just so many times that even people can see through the vendetta now. So they were trying to make it a very not visible. What was not visible, P. Jain ji, if you can confirm. ठीक है, तो इन लोग ये कर रहे थे। अब विहांग सरनायक ग्रुप, हाँ, विहांग सरनायक ग्रुप, corporate projects, NRI careers, contractors blog, okay. Okay, एक चीज मैं बहुत क्विकली चेक कर रहा हूँ पीपल, मुझे ये चेक करना है बिकॉज एक सेकेंड। ओके, SEC consultant landscape architect. क्या मिल गया यार, क्या मिल गया यार। ओके, चलो वीडियो ही दिखा दे फिर तुम्हें। This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ad? Okay, ये अभी मिला है यार, so let me go ahead and show. Please show that page, bro. I'll share the article. एक सेकंड रुक, मैं आर्टिकल लिंक यहाँ चैट में डाल देता हूँ। Wait. शिवसेना claims विहांग वाला ना, एक मिनट रुको। ये मैंने विहांग वाला आर्टिकल चैट में डाल दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज पे। विहांग ग्रुप से मुझे एक चीज ध्यान आती है, और लेट मी शो यू ऑल्सो
which again might go ahead and connect to the theory of stun gun. अगर दिमाग लगा सको तो लगाना, उसके आगे बढ़ेंगे फिर. ओके, ये रहा. Welcome back, and we have. ओके, सो इसका टाइटल ये है, ईडी रेड्स टॉप सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स इन मुंबई टू इन्वेस्टिगेट एंगल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. जिसे नहीं पता है, विहांग सरनायक ग्रुप जो है, दे ओन टॉप सिक्योरिटी, जो मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. इट्स अ सिक्योरिटी फर्म. ओके, वो भी थाने से है. चलो आगे बढ़े. Have some breaking inputs coming in. The main corporate office of Top Security has now been raided by the ED officials. A 10-member team is conducting raids, and the HR and admin head of the firm has also been taken along with them to the office. So the Top Security headquarters is now under the scanner and being raided by the ED officials. We'll shortly also go across to my colleague Priyanka. Priyanka, over to you. Please share more details of Top Security headquarters now raided by the ED. All right, we will in fact go back to Priyanka shortly from now, but the latest update that we're receiving is that the headquarters of the TOP's National Corporate Headquarters has been raided by the ED. Okay, my idea of showing you this was just the fact that, again, Thane-based organization, raided by ED, Vihang Sarnayak Group, Top Security agency, a big one which provides security to majority of Bollywood, could have a license for stun gun. Big deal. होगा. अब सरनायक्स आर द वन. विहांग सरनायक, अगर यहाँ पे जो लोग महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हैं, they would know Vihang Sarnayak is the one who handles money for Shiv Sena. And not just the money that Shiv Sena has, but the money that all the three government has in collaboration, which also includes money of Tede Muh Wale Hamare Chacha, which is Sharad Pawar. And could this be one of the reasons? क्योंकि अगर आप थाने और पालघर वाला एरिया देखोगे, 60-65% of land is acquired by Sarnayaks. They have bought it all. ये तो था थाने गैंग का हमारा रीजन. सबसे पहली एक सोचने वाली बात कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि प्रताप सरनायक himself had to get into something and try talking about blaming Sushant's sisters. ऐसा क्या हो सकता है कि प्रताप सरनायक ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर वो केस रीओपन करवाया. एंड इफ यू गाइज रिमेंबर, अर्नब अरेस्ट होने से पहले एक बात 2 से 3 डिबेट्स में उसने बार बार बोली थी, अगर आप लोगों को याद होगा, अबाउट अ बंगलो विच इज ऑन द सी, एक फिल्म प्रोड्यूसर का, और वहां पे क्या सब होता है. यू गाइज रिमेंबर? बीच साइड बंगलो. इफ यू रिमेंबर, अर्नब ने वो 2-3 चीजें पॉइंट आउट करी थी, एंड उसके बाद ही उसके साथ ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी. ओके, अभी विहांग सरनायक ग्रुप इज अ वेरी बिग ग्रुप. बहुत बड़ा ग्रुप है एक्चुअली. एंड क्या क्या है इनके सिक्योरिटीज हैं, दे आर इनटू आर्किटेक्चर, दे आर इनटू रियल एस्टेट. ठीक है, अब आपको एक कुछ दिखाते हैं. दो चीजें. अगेन, could be reaching far, but a lot of things connect. Okay, थाने गैंग जैसे लोगों ने बचाने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग द पुलिस. They also have a Vihang Vihar resort in Palghar, India. ये इनका रिजॉर्ट है. ठीक है, पालघर. ओके,
पालघर भी आ गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो लोकेशन है ना इनके रिजॉर्ट की, जो लोकेशन है वहां से कुछ भी सी के थ्रू लाना ले जाना इजीली हो सकता है। जस्ट लुक एट इट। Okay, this is Vihang Vihar Resort, southernmost part of Palghar area, दातीवाड़े जो भी बोलते हैं, and this is the sea. और अगर आप आज की डेट में, चलो एक और चीज ढूंढ लेता हूँ और दिखा देता हूँ अगर मिलता है कि नहीं। Okay. $3,700. एक ना, ओके आई टेल यू, एक ना अगर आप गूगल जाके थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूज़ दबाई हुई है। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड दैट आर्टिकल, बट एक पर्टिकुलर शिप पकड़ी गई थी वो लिंचिंग से पहले के टाइम पे, एक बोट, अगर किसी को वो न्यूज़ याद हो, जिसमें 700 करोड़ के ड्रग्स थे, and that particular boat was on the way of India and Pakistan waters, and जो पांचों सेलर्स थे ना उस बोट के, they belong to पालघर। अगर आप जाके देखो, पालघर लिंचिंग के आसपास के टाइम पे एक 700 करोड़ का ड्रग बस्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान वाटर्स पे। इट वाज एन इंडियन बोट, एंड जो उसमें सेलर्स थे वो पांचों पालघर से थे। एंड लुकिंग एट द ट्रैजेक्टरी ऑफ, नॉट द कॉर्डेलिया सुनील सर, नॉट द कॉर्डेलिया, देयर वाज समथिंग एल्स। 700 करोड़ का केस था ये। मैं बोल रहा हूँ ना, I'll dig a little more and I'll come back on this with Rajat when we'll be talking specifically about Sarnaik's, because we would not stay shut. तो सारे एंगल्स देखने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ विहांग विहार रिजॉर्ट, ठीक है, बीइंग जस्ट नियर द सी, अर्नब बार बार रिपीटिंग द सेम थिंग कि सी वाला बंगलो, ठीक है। उसके बाद द अदर फैक्टर इज दैट सुशांत की बहनों के अगेंस्ट प्रताप सरनायक हिमसेल्फ कमिंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू पुट एलिगेशंस, okay, not UT or AU, nobody of them are doing it, it's Pratap Sarnaik. And फिर ED out of the blue प्रताप सरनायक और विहांग सरनायक को क्यों रेड करती है along with CBI? So सवाल बहुत है। और इनका रिजॉर्ट ऐसे लोकेशन पे साउथ पालघर पे, द थाने गैंग, कुछ तो चक्कर है बाबू। However, this was all I had to share. The one angle that I wanted all of you to go ahead and talk about was the fact कि ये जो थाने angle है ये बहुत important है। Not just Sarnaik, not just Paramveer, but everyone whosoever is in and around the थाने angle is very important, because ये जो थाने का हब है, एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही हो जाती है ना हमारे लिए यार, कि अगर कोई है, एक सेकंड में लिंक फिर से डाल रहा हूँ, किसी ने ज्वाइन किया नहीं था, इफ समवन वुड स्टिल वांट टू ज्वाइन, you guys can, link is in the chat, and if you want to keep your opinion, feel free to go ahead and do that, and you can also keep your opinion on what you feel about this new angle of Thane, which is important, and why Pratap Sarnaik, who has hardly been talked about, सिर्फ स्टाइल रग ने एक बार ही उसके चैनल पे बात करी है। स्टाइल रग is the one who talked about Pratap Sarnaik in detail, but ये वाले एंगल से हमने सोचा नहीं था, and I really thought
that this is important for us to go ahead and cater to. And P Jain ji, I know Ekta wala session, give me like next half an hour and it will be done. Okay, it will be done, it will be available. And this video, guys, it's not just about Mumbai police. It's about an angle जो थाने का है. It's about an angle जहाँ पे ईडी के साथ सीबीआई भी सरनायक को रेड कर रही है. It's about an angle जहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से प्रताप सरनायक हैज बीन अंडरग्राउंड. और एक और झूठ मेरे दिमाग में आया था वैसे अभी, जो रिया चक्रवर्ती ने बोला है. रिया चक्रवर्ती सेड कि दिशा सालिया से वो सिर्फ बहुत कम मिली है, मतलब हार्डली मिली है. Disha Salyan was going ahead and managing one of the cast of the movie मेरे डैड के मारुति. तो वो सेट पे रेगुलर जाती थी. मेरे डैड के मारुति में रिया चक्रवर्ती भी थी. तो हाउ डिड ताई सिंपली कैन लाई ब्लेटेंटली दैट मैं दिशा से मिली नहीं या फिर सिर्फ 10 मिनट के लिए मिली या व्हाटएवर. अगेन उस पे हम आएंगे जब ताई पे आएंगे. ये मेरे दिमाग में एकदम से पॉइंट आया, थोड़ा पुटिंग इट आउट. I can see that no one has joined, no one is in a mood. I know the session has been long, apologies for that, but please do look into this Thane angle. Please do look into Vihang Vihar Resort. Please do look into what has been Vihang Sarnayak up to since June 14th. Please look into the fact वो पालघर के आसपास की पालघर अगर जो लिंचिंग हुई भी होगी तो क्यों हुई होगी. And how can what role would Sarnayaks have to play around all this? Why were they so persuading towards the fact to prove it a suicide? And why did Pratap Sarnayak himself had to take a step of initiating a case against Arnab Goswami when he was trying to say something? और आज हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका साउथ पालघर में एक विहांग विहार रिजॉर्ट है, बहुत सारे कनेक्शंस है यार. सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. वी विल मीट अगेन टुमारो और कल हम कुछ और बात करेंगे. पालघर इज अंडरवर्ल्ड एरिया, मिस्टर नथिंग, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट Sarnayaks have got to do something with this. Something. चप्पल चोर परमवीर, अरे उसका ऑपरेशन होगा सर. उसके नाम से एक स्पेसिफिक एपिसोड होगा आगे. आज तो मैंने बहुत ब्रीफली सारी चीजों को वो किया है. आगे जाके हम और डेप्थ में घुसेंगे, एक एक इंटरव्यू को रिलिव करेंगे टू इंश्योर कि हमने बिट्स एंड पीसेस में वो इमोशनल फ्लो में ये सारी चीजें मिस ना करी हो. तो आज भी अगर हम जा रहे हैं, ओ पी जैन जी, आई एम सॉरी, यूर अ गर्ल मैम. सो दैट्स व्हाट वी विल डू, दैट we'll relive everything and we'll relive थाने once again. ये थाने का कनेक्शन बाबू भैया हम सबको एक दिन डुबाएगा. सो थैंक यू एवरीवन. चप्पल चोर के लिए लाइक आवाज उठाते रहो कि उसको प्रोब करो यार, उसको सब मालूम है. वो अपनी सैंक्टिटी के साथ सारी चीजें बताएगा. सैंक्टिटी को और प्रोफेशनलिज्म को मद्देनजर रखते हुए अपनी चप्पलों की नीलामी करके आएगा बताने, लेकिन बताएगा. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच. लाइक कर देना वीडियो यार अगर मन हुआ तो, और कमेंट कर देना. कमेंट के लिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो लोगों को लगता है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर कमेंट कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा. मुझे फीडबैक मिलेगा कि मुझे क्या इम्प्लाई करना है टू मेक थिंग्स बेटर. आज मैंने सोचा था कि हम ओपन सेशन करेंगे, बट आप लोगों ने कोई ज्वाइन नहीं किया. गजब बेइज्जती कर दी मेरे साथ यार, गजब बेइज्जती है. आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू ऑल पीपल. सॉरी यार, I'm sorry to say that, but thank you. मजाक कर रहा हूँ, just kidding. I'll see you all tomorrow. Have a good night and let the facts do the talking. मिलते हैं कल अलग धमाके के साथ. See ya. कल शायद बॉलीवुड का नंबर है, तो tomorrow would be a fun day, but have a good night.